Well, the news from the toss is that Dera Murad Jamali have won the toss and they have opted to bowl first. The team would have their hopes very high regarding him. Mohammad Akram is the name. Please remember that because this boy has some talent. But what he did needs repetitions, more and more frequent to get him right up there. He has now shown the glimpses of talent, which not many show at this level. And this opportunity is something that not many boys get. So Salim Mal will be the bowler. We shall see what sort of a plan is set for Akram because he mostly took advantage of the shorter length. So will DMJ bowl fuller or change the line and length to just not allow those batters to play at their strengths? We shall see all that. Some exciting action coming up. Right, almost everything is in order. Waleed Yaqub says, let's go, gentlemen. There's something in the previous game where Hyderabad were very smart, especially with the new ball. The point you just mentioned about the length. Oh no, they played it straight to mid-off. That's disappointing for Akram. Wanted to go big, but could only manage to hit it straight to the fielder. The very visible difference being a fullish length ball, allowing the ball to swing and asking the batter to play this ball where he couldn't use the pace. He had to create his own timing, and this time he tried to lift it over mid-off and couldn't time it, couldn't middle it. Illegal delivery, no problems there. And bottom of the bat, an easy catch to mid-off. So done and dusted. The man with the fastest 50 is gone thick and fast back to the dugout. 3 for 1 Bahawalpur. That will be a boundary. This is where you need to avoid that leg side-ish runs given by the umpire off the edge for 4. Once again down the leg side, lucky that oh no, this in fact very lucky is the bowler. A faint edge that goes straight to the keeper. So this is a bonus. So this goes to a ball which deserved to go to the boundary. In fact, off the bat has gone in the hands of the keeper. Yeah, what a start. What a brilliant start for Dera Murad Jamali. He's smiling it off. Maybe he is not convinced with the decision, but what's done is done. He's been given out by Rashid Riaz. Let's have a look. Took his time. Really can't tell from here. Wicketkeeper did appeal for it. Half-hearted appeal. He's not really convinced even the wicketkeeper. So this will have to go back, scoring 6 runs, 7 for 2. Very good attack of Sialkot team. We'll come back to it. This is wonderfully driven all along the ground, through the covers, gets to the boundary, and at last, a good conventional cricket stroke. Opportunity taken, quite simple. Doesn't get any easier than this for the bowler. Then his follow through takes the catch and ends the inning of Umair. Are we in for another game where a lesser side is going to topple a team who has just won a game against a bigger side? Farhanullah this time the successful bowler, and the benefits of pitching the ball up and just once again
Poor technique, just closing the face of the bat way too early, trying to go across the line on the onside. Top edge lobs an easy catch to the bowler. Mohammad Umair gone for 4. Bahawalpur further trouble. They are in 18 for 3. Into extravagant shots like this. Beautifully played. Straight down the ground by Imran. Yeah, this is Imran Randhawa. Gets one in the slot. You have to extract somebody's mind to know where he's coming from. Another boundary, just straying down the leg, Shahid. Imrani, all he had to do was get some bat on it. And get into the T20 format. It is a huge appeal and the finger is raised. Another one bites the dust. Bahawalpur in further trouble. The 4th wicket has gone down. Not many runs on the board. Start of the 9th over and more bad news for them. Yeah, the rewards for consistent and disciplined bowling. Again, just around that off stump, good length, backing up Imran. He had enough the previous over. He got one boundary. He wanted to accelerate. He's gone on 14, the skipper. 4 down on 38. बॉल कर दिया, शानदार डिलीवरी. बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि ब्रेक के बाद मुश्किलात होती हैं बैटर्स के लिए और ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे भावलपुर के साथ देख रहे हैं और यहाँ तो मुश्किलात शुरू से ही जारी हैं. ये 5वीं विकेट गिरी है 42 रन के स्कोर पे. कोई मसला नहीं है यहाँ पे. फ्रंट फुट का दूसरे एंड पे मसला है, बड़ा मसला है भावलपुर के लिए. पहला बॉल खेल रहे हैं ब्रेक के बाद. नजरसानी करनी होगी इस चॉइस पे. शायद मिरानी 3 रन बनाकर वापस जाएंगे. 42 पे 5. अगले ही मैच में आप बिल्कुल ढेर हो जाएं, ये थोड़ा नामुनासिब है. शे अच्छा शॉट है, 4 रन देके जाएगा. फील्डर के टांगों के दरमियान से जाते हुए चौका हासिल किए. टिपिकल कदमों का इस्तेमाल और गेंद वहां जाएगी जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं है. काफी बड़ा छक्का था ये, बिल्कुल बैट के दरमियानी हिस्से से लगता हुआ ये स्ट्रोक. 6 रन का अंपायर का सिग्नल स्कोरर की जानिब के लिए तैयार रहना पड़ेगा. कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन फील्डर बहुत बाहर खड़े हैं. 1 ही रन बनेगा. चलिए कोई बात नहीं, तोहफा दीजिए. अपने भावलपुर के भाइयों को तोहफा दिया गया है 4 रन की सूरत में. बहुत ही कैजुअल अप्रोच जो कि शायद इस लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए. आउट हो जाएंगे. बहुत ही शानदार बॉलिंग, बहुत स्मार्ट बॉलिंग फाद की जानिब से. परख लिया था कि कदमों का इस्तेमाल करेंगे. दूर फेंका, स्लो फेंका और विकेट कीपर के कॉम्बिनेशन के साथ ये विकेट हासिल की है कप्तान फहद ने. ये आइडियल गेंद थी. ऑफ साइड ऑफ स्टंप, थोड़ी फ्लाइट थी. डिसीव हो गए फ्लाइट्स में अफजल और बड़ी शॉट खेलने के लिए गए थे. उन्होंने काफ़ी ऐसी शॉट्स पहले ट्राई की थी लेकिन इस मरतबा कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बनी. इस मरतबा वो अपनी विकेट खो बैठे और ये एक और धचका है भावलपुर को. अगर हम ये देखें फ्लाइट डिलीवरी, कोसों पीछे थे. एक और जगह से देखेंगे, ये एक बेहतर मंजर है. चलिए, कदमों का इस्तेमाल किया. गेंद कहीं था, पाँव कहीं थे, नज़र कहीं थी और विकेट कीपर चौकस से उन्होंने गेंद को हासिल किया और साथ ही धे मारा विकेटों पर. तो इस तरह अफजल का वापस लौटना होगा. 66 पर ये एक और विकेट गिर चुकी है और ये है विकेट नंबर 6. कोई आसान काम नहीं था अफजल के लिए. वो विकेट पर टिके रहे थे और ये देखिए कितने दूर चले गए थे और कितना दूर जाएंगे. लीजिए बड़ी जल्दी. अच्छा क्विक वर्क विकेट कीपर का. जहाँ बहुत हैरान की हुई है कि काफी देर तक इंतजार करते रहे हैं इस आउट देने का. इनको तो खुद ही अपने आप को आउट दे देना चाहिए था जितना बाहर क्रीज से मौजूद थे. अली अफजल ने बनाए 13 रन. 66 रन पे 7वीं विकेट गिरी है भावलपुर रीजन की. बैक टू कॉम्स. तो अच्छी रौनक है बाहर और इस दौरान ये अच्छी कट है. इसमें 4 रन मिलेंगे और अम्मार की ये बेहतर कोशिश थी इस सूरत हाल में जब खाल खाल बाउंड्रीज लग रही हैं. बहुत तेज गेंद किया था एंगल के साथ, सीधा स्टंप्स के सामने खाया. बहुत आसान डिसीजन ये अंपायर के लिए और एक और विकेट हासिल की डेरा मुराद जमाली ने. जी हाँ, एक और बड़े विकेट. आज कोई भी बैटर
टिक नहीं पा रहा विकेट के ऊपर और इसके बाद दीगर कामयाबियां हासिल की। बिल्कुल लीगल डिलीवरी, कोई मसला मसाइल नहीं। विद इन द स्टंप बॉल किया, सीधा थाई पैड पे टकराया और आउट। अली शब्बीर सिर्फ 4 रन्स बनाए, 7 विकेट्स गिर चुकी हैं 81 रन्स के मजमूई टोटल पर। फुल टॉस, फायदा उठा नहीं पाएंगे, फील्डर नीचे आ रहे हैं गेंद के और आसान कैच। मौका मिला था बाउंड्री लगाने का, लेकिन अजब उस शॉट पे कमांड नहीं रख पाए। 7वीं विकेट भावलपुर के लिए। लीगल डिलीवरी, फुल टॉस बॉल था, कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, बॉटम ऑफ द बैट लगा, बॉल हवा में गई। शॉर्ट कवर के खिलाड़ी का बड़ा शानदार कैच, बड़ा अच्छा जज किया, उस कैच को किया मुकम्मल। मोहम्मद अजहब 7 रन बनाने के बाद आउट। 19 ओवर के अख्ताम पर भावलपुर 94 पर 8। क्रीज में डीप गए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाया है और ये 4 रन। अच्छी स्ट्राइक, अच्छी प्लेसमेंट बासित की। 4 रन हासिल किए। फिर क्रीज में डीप, लेकिन इस मर्तबा कोई गलती नहीं की सलीम ने। शानदार यॉर्कर और बासित ने अपनी विकेट गंवाई। मजीद रन्स की तलाश में बासित अपनी विकेट दे बैठे। सलीम की एक और कामयाबी। फ्रंट फुट इस वक्त देखा, कोई मसला मसाइल नहीं। लीगल बॉल, डेडली यॉर्कर, इसको रिवर्स खेलना चाहते थे और बॉल सीधा स्टंप्स में। बासित 4 रन बनाने के बाद आउट। भावलपुर 103, 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी गेंद, आखिरी विकेट। बीट किया और इसी वजह से ग्लव्स उतार के खड़े थे शुएब। इसके साथ ही भावलपुर की इनिंग्स खत्म हुई। 104 का हदफ मैनेज कर पाए हैं। बहुत शानदार बॉलिंग डेरा मुराद जमाली की। नए गेंद्स के साथ फास्ट बॉलर्स ने डिलीवर किया, बीच में स्पिनर्स ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और डेथ बॉलिंग भी शानदार रही। भावलपुर के बल्लेबाजों को सर उठाने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया और डिसिप्लिन्ड बॉलिंग टॉस जीत के पहले जो डिसाइड किया था उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट किया। खुश दिखाई दे रहे हैं डेरा मुराद जमाली के कप्तान और उनके दीगर बॉलर्स भी, कि उन्होंने आज बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 104 रन्स का हदफ है इनके सामने, जो कि ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होने वाला। बैटिंग कार्ड पर एक नज़र डालेंगे। अम्मार ने बनाए 39 रन, नुमाया रहे आज, लेकिन ये इनिंग्स कोई अच्छी नहीं है T20 के हवाले से। इमरान ने बनाए 14 रन और अफजल ने बनाए 13 रन। इसके अलावा कोई भी बैटर जो है वो डबल फिगर में दाखिल भी ना हो पाया। और भावलपुर रीजन ने बनाए 104 रन मुकर्ररा 20 ओवर्स में। टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था और उस फैसले को बैक किया फरहानुल्लाह ने। 3 विकेटें हासिल की, 2 सलीम 2 तारिक ने, एक गई फहाद और सजाद के नज़र। लेकिन डिसिप्लिन बॉलिंग ने बार उन्हें फ्रूट्स जो हैं वो दिए, कामयाबियां दिलाते गए और इस वजह से 104 पे ही कंटेन कर पाए भावलपुर को। नासिर खान ये भी अच्छे बैटर हैं, अच्छी हिट करते हैं और इनको एक एज हासिल है कि ये लेफ्ट हैंडर हैं। दैट इज़ प्लस पॉइंट फॉर एनी बैटर, जो कुदरती तौर पे एक सलाहियत होती है। और फिर ये टीज़ करते हैं बॉलर्स को भी, उनको बॉलर्स को सही लाइन इख्तियार करनी पड़ती है मिडल और ऑफ स्टंप से बाहर। उनका मुकाबला है मोहम्मद अजहब के साथ, जिन्होंने बहुत जल्दी नाम बनाया है अपनी पेस से, अपनी एक्यूरेसी से। लेकिन इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस उस तरीके से रही नहीं जिसकी तवक्कुआत की जा रही थी। लाहौर कलंदर्स ने इनको सबसे पहले पहचाना था, इनकी एबिलिटीज़ को, लेकिन वो जो नाम बना था उस तरीके की परफॉर्मेंस हमें अभी तक नज़र नहीं आई है। क्या आज वो शाम हो सकती है जहाँ पे इनका बेस्ट बॉलिंग नज़र आएगी? आगाज तो इतना खास नहीं है क्योंकि आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये पहला बॉल किया, स्पॉन्सरशिप किया जाएगा। बॉल हो गए, शानदार बॉलिंग, अजहब ने गजब ढा दिया। सही कहा आपने। और
ये तेज गेंद थी और बासित इसको ऑफ साइड पे खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद ने रिवर्स स्विंग ली, अंदर आई और स्टंप्स के ऊपर जाके लगी। तो इस तरह ये पहला नुकसान है। अगर हम देखें ये बिल्कुल लीगल डिलीवरी थी और इस तरीके से ये धचका लगा है। और यहाँ पर अब हम सोचने पर मजबूर हैं कि क्रिकेट का जो खेल हम कहते हैं कि ये लेवलर है, ग्रेट लेवलर है, यहाँ पर होता हुआ दिखाई शायद दे हमें। बासित अली 0 पर आउट हुए, डेरा मुराद जमाली 0 पर एक खिलाड़ी आउट। इवन T20 क्रिकेट में भी ये बेहतरीन गेंद थी और जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो जैसे आप कह रहे थे कि अजब जो हैं वो गजब ढा रहे हैं और ये दूसरी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। गेंद बड़ी अच्छी ऊंचाई पर आई, तेज निकली, खड़े खड़े दाऊद ने इसको ड्राइव करने की कोशिश की, आउटरेज लगा और बकिया काम विकेट कीपर ने किया। तो इस तरह क्या इस मैच का एक इंटरेस्टिंग एंड होने के लिए जा रहा है, सनसनीखेज इख्तिताम होने को जा रहा है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसकी दाग बिल जरूर डाल दी है अजब ने। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और उनको मदद भी हासिल हुई है बैटर्स की खराब शॉट सिलेक्शन की भी। दाऊद खान मायूस होंगे इस परफॉर्मेंस से, ये आखिरी मौका था इस टूर्नामेंट में इनका। ओवर्स हैं उनको और इस बार एलबीडब्ल्यू के जबरदस्त अपील, आउट हो जाएंगे। तो इस तरह एक और कामयाबी हासिल हो गई अजब को और ये तीसरी कामयाबी है और कहना होगा कि बहावलपुर अब इन्होंने अपने इम्कानात पैदा कर लिए हैं इस मैच में कामयाबी के लिए और ये तीसरी विकेट गिरी है। तो इस तरह डेरा मुराद जमाली दे आर राइट ऑन टॉप। बिलाशुबा बिल्कुल आपने सही डिफाइन किया, बहुत शानदार बॉलिंग, स्टंप्स टू स्टंप, थोड़ा पड़ के अंदर आया, हाइट क्वेश्चनेबल हो सकती है लेकिन अब नहीं, अब आउट दे दिए गए। खुशी की लहर दौड़ी है एक, क्योंकि अब ये समझते हैं कि ये गेम में इनकी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो गई है। 3 विकेट हासिल करनी है सिर्फ तीसरे ओवर में ही, 5 रन ही अभी बोर्ड पे और तीसरी विकेट। मोहम्मद खान वापस जाएंगे बगैर कोई स्कोर किए। मिसफील्ड है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपने बॉलर्स को, क्योंकि इतनी आसानी से रन दे देंगे तो ये ऐसे ही तासुरात, ऐसी ही नजरें पाएंगे अपने कप्तान की भी। एज लगा लेकिन फर्स्ट स्लिप के पास से होता हुआ बॉल चला गया थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। रोकना पड़ेगा, अगर कदमों का इस्तेमाल किया, इनफील्ड को क्लियर करने में कामयाब हुए और पेस इतनी है कि बाउंड्री तक चला जाएगा। या के बाद दीगरे 2 चौके। कदमों का इस्तेमाल और 4 रन्स के लिए, जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं गया लेकिन फिर भी एज लगा और थर्ड मैन की तरफ 4 रन्स के लिए खेल दिया। कदमों का इस्तेमाल, ऑफ साइड पे खेला, बहुत ही शानदार बैटिंग, एक प्लान नजर आ रहा है और अच्छी एक्सिक्यूशन इस मर्तबा नासिर की जानिब से। बहुत अच्छी बॉल, चौका दिया और फुटबॉल स्किल्स यहां पर थोड़े शो कर दिए। डायरेक्ट लगा है लेकिन देखना होगा क्या ये हो गए आउट। टीवी अंपायर को रेफर कर दिया गया है। शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल किया जिसको बड़े आराम से दिफाई स्ट्रोक खेला शाहिद ने, लेकिन वहां पर सॉकर स्किल काम आए बासित के। बॉल को किक किया और बॉल सीधा स्टंप्स में। मरीना व्हाट यू से? मुझे तो काफी करीबी मामला लग रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि नासिर ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह का कोई टैलेंट दिखाएंगे बासित, और बहुत कैजुअल अप्रोच थी। देखें बल्ला भी बहुत पीछे है और ये जो ब्रेक थ्रू चाह रहे थे भावलपुर वो उन्हें मिल गया है। पार्टनरशिप टूट गई है और कैजुअल रनिंग है, कैजुअल अप्रोच है, क्योंकि आप आजकल की क्रिकेट में एक्सपेक्ट करते हैं कि फास्ट बॉलर्स इस तरह पाँव से फ्लिक करते हैं, आपका काम है रन मुकम्मल करना, और ये लापरवाही महंगी साबित हो सकती है डेरा मुराद जमाली के लिए। आउट हो जाएंगे यहाँ पे। फुटबॉल स्किल्स भारी पड़ गए क्रिकेट के अंदर डेरा मुराद जमाली को। नासिर खान को जाना होगा। ये आउट हो गए, ये आउट होंगे और जी हां, राशिद रियाज की उंगली हवा में बुलंद हुई और एक और धचका डेरा मुराद जमाली को। गेम में वापस आ गए। अच्छी बॉलिंग, एक रन आउट के बाद फिर हालात बदले और शब्बीर इस बार बिल्कुल भी नहीं चूके। विद इन द स्टंप्स हमेशा कामयाबी मिलती है। अच्छी लेंथ से गेंद अंदर पड़ के आया और कोई फुट मूवमेंट नहीं थी, सीधा स्टंप्स के सामने शुएब ने अपने पैरों पे गेंद खाया और एक और नुकसान और भारी नुकसान, और अब बहुत मुश्किल हालात लग रहे हैं। शुएब अहमद 1 रन बना के वापस 36 पे 5 डेरा मुराद जमाली।
कोचिंग स्टाफ था तो हम लोगों ने बहुत सीखा उधर से, और जो क्रिकेट का प्रेशर होता है सारी चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट, तो अपनी सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेली थी जिसकी वजह से हम लोग जीते थे। और हर बंदे का अपना माइंड सेट होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से अपनी जो एक नेचर थी और उसके ऊपर मुझे अपनी मेहनत के ऊपर पूरा बिलीव है कि मैं इंशाल्लाह अपनी कंट्री के लिए खेल सकता हूँ। तो हर एक बंदे को अपने माइंड सेट के ऊपर काम करना चाहिए। बात जो खुदादाद सलाहियतें होती हैं उनका भी अमल दखल होता है। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर, बॉलर के ऊपर से गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये एक वेलकम बाउंड्री है शायद की तरफ से, और लगता है कि अब कुछ उम्मीद बन चली होगी। हटके थर्ड के ऊपर से खेला और ये एक और कैच ड्रॉप और ये 6 रन भी हो जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग मूव है, स्पिनर का आते ही इस्तकबाल किया फहद ने। देखना पड़ेगा कि बहावलपुर के लिए इस टाइम पे स्पिनर का आना खतरे से खाली नहीं था। एक बार फिर सीधा फील्डर इस ताक में, लेकिन नहीं रुक पाएंगे। 2 गेंदों पे 10 रन। सीधा हवा में, कीपर को ग्राउंड कवर करना पड़ेगा और एक और कैच। जिस मकसद के लिए इमरान रंधावा आए थे, जिस पार्टनरशिप को तोड़ने की ताक में था बहावलपुर, वो उसमें कामयाब हुए। यह देर से ही सही, लेकिन एक मरतबा फिर एक ट्विस्ट आया है इस मैच के अंदर। विकेट, बड़ी कीमती विकेट हासिल किया इस मौके पर इमरान रंधावा ने। कप्तान हैं और रोल मॉडल है अपनी टीम के लिए। ओ काफी करीब है, देखना होगा एक मरतबा फिर। टीवी अंपायर इस वक्त उम्मीद कर रहे होंगे बैटर फहद हुसैन कि शायद कहीं ना कहीं उनका फेवर मिल जाए यहाँ पर बिग स्क्रीन्स पर, और लीगल बॉल लग रहा है यहाँ से। तो जी हाँ, मतलब फिर अपनी लेंथ को थोड़ा सा शॉर्ट रखा, वाइड था, ऑफ स्टंप से मिड विकेट मारना चाहते थे, टॉप एज और विकेट कीपर का बड़ा शानदार कैच। शायद एक मरतबा फिर शाही की क्रिकेट को ट्विस्ट भी देखने को मिले। फहद हुसैन 40 रन बनाने के बाद पवेलियन की तरफ वापस इनटू द सरफेस, और ये ग्लव लगाए, देखना पड़ेगा। आउट, एक और विकेट, एक और बड़ा झटका और दाद देनी पड़ेगी इमरान रंधावा जो कि कप्तान है, खुद जिम्मेदारी ली और एक के बाद एक विकेट हासिल की। या मंजिल के इतना करीब आकर विकेट्स गंवानी शुरू कर दी हैं डेरा मुराद जमाली ने। पहले फहद और अब पहली ही बॉल पर तारिक। अगेन फ्रंट फुट, लीगल बॉल, फेयर डिलीवरी। एक मरतबा फिर शॉर्ट पिच बॉल ने अपना काम किया। ऑन साइड पर बॉल था जिसको फाइन लेग पे खेलना चाहते थे, ग्लव पर बॉल लगा और एक और अच्छा कैच विकेट कीपर का। इसके बाद दूसरी अहम कामयाबी, तारिक जमील पहली बॉल पर आउट। डेरा मुराद जमाली 98 पर 7। इनटू द सरफेस, और ये ग्लव लगाए, देखना पड़ेगा। आउट, एक और विकेट, एक और बड़ा झटका और दाद देनी पड़ेगी इमरान रंधावा जो कि कप्तान है, खुद जिम्मेदारी ली और एक के बाद एक विकेट हासिल की। या मंजिल के इतना करीब आकर विकेट्स गंवानी शुरू कर दी हैं डेरा मुराद जमाली ने। पहले फहद और अब पहली ही बॉल पर तारिक। अगेन फ्रंट फुट, लीगल बॉल, फेयर डिलीवरी। एक मरतबा फिर शॉर्ट पिच बॉल ने अपना काम किया। ऑन साइड पर बॉल था जिसको फाइन लेग पे खेलना चाहते थे, ग्लव पर बॉल लगा और एक और अच्छा कैच विकेट कीपर का। इसके बाद दूसरी अहम कामयाबी, तारिक जमील पहली बॉल पर आउट। डेरा मुराद जमाली 98 पर 7। 2 गेंदें डॉट, बोल्ड कर दिया, बोल्ड कर दिया सुदेश। इस वक्त 7वें आसमान पे उनका हौसला। 2 डॉट बॉल्स, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इस बार थोड़ा सा रफ्तार में रद्दोबदल किया था, लेंथ भी थोड़ी सी आगे थी जिसको पीछे हट के खेलना चाह रहे थे शाहिद। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, मसला है इस एंड पे डेरा मुराद जमाली के लिए। बिल्कुल भी नजरें गेंद पे नहीं थी, बहुत जोर से शॉट मारना चाह रहे थे मिड विकेट पे, और किस तरीके से इन्होंने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया सुदेश ने और वो ही डिलीवर किया जो इनसे रिक्वायर्ड था। मोहम्मद शाहिद अच्छी इनिंग्स थी, 39 बना के वापस डगआउट में। डेरा मुराद जमाली 8 विकेटों पे 100। कदमों का इस्तेमाल, सीधा गेंद उठाया, फील्डर गेंद के नीचे और एक और विकेट।
सुदेश की किस्मत जाग पड़ी और बहावलपुर की भी शानदार ओवर अभी तक का। ये है T20 का एक्शन, ये है नशेब अफराज, उतार चढ़ाव, ये है ABS डेवलपर नेशनल T20 क्वालिफायर। फेयर डिलीवरी, सुदेश एक मरतबा फिर कर दिखाया है उन्होंने, कदमों का इस्तेमाल किया, वाइड डिलीवरी बड़ी चालाकी के साथ बाहर की तरफ खिलाया, एज लगा, बॉल हवा में और इस मरतबा लॉन्ग ऑफ पर इमरान रंधावा। जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इन दोनों टीमों का मैच, डेरा मुराद जमाली भावलपुर, बिल्कुल उसी तरह का मैच हमने अब तक देखा है। सीधा उठाया, फिर हवा में गेंद, फील्डर नीचे आ रहे हैं और एक और विकेट। शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस सुदेश की जानिब से। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मैच में एक ही ओवर करेंगे और वो सबसे अहम इंपॉर्टेंट ओवर होगा, आखिरी ओवर जिसमें सिर्फ 5 रन डिफेंड करने थे भावलपुर को। शाही की क्रिकेटर्स ने फाइनल से पहले फाइनल देख लिया है। यहाँ पर 5 स्कोर चाहिए था, एतमाद जाहिर किया सुदेश के ऊपर। सुदेश ने 2 डॉट बॉल, फिर विकेट, फिर डॉट, फिर विकेट और आखिरी बॉल में 5 रन दरकार थे। टॉप एज लगा, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी ने आउट कर दिया और इस वक्त रंधावा एंड कंपनी, इस वक्त उनकी खुशी की इंतहा होगी। आप सोचें, अपने आप को वहां पर रखें कि एक लो स्कोरिंग गेम जिसका किसी ने भी नहीं सोचा होगा, 105 रन T20 के अंदर कुछ भी नहीं होते आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर, लेकिन इमरान रंधावा एंड कंपनी ने कर दिखाया है 4 रन से। गुलाम अली अभी भी खुश नहीं है। नजर डालते हैं बैटिंग कार्ड की तरफ। नासिर ने बनाए 14 रन, शाहिद और फाहद दोनों ने 39 रन की पारी खेली और इसके अलावा दीगर बैटर्स हम देखते हैं कि 0-1, 0-1, 0-1 लंबी लाइन है। 100 रन पर इनिंग सिमट गई डेरा मुराद जमाली की। दाद देनी पड़ेगी जिस तरह आगाज किया था। अजब ने 3 विकेटें हासिल की, इमरान रंधावा 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, लेकिन आखिरी ओवर में 3 विकेटें, 3 शिकार सुदेश के नाम, जिन्होंने अल्टीमेट ओवर किया और 5 रन डिफेंड किए अपनी टीम के लिए। लेकिन दाद सारे बॉलर्स को जाती है क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना लंबा मैच जाएगा आखिरी ओवर तक। एक बार फिर भावलपुर को शानदार परफॉर्मेंस के लिए मुबारकबाद। भावलपुर रीजन को पहले बैटिंग की दावत दी गई थी। 104 रन बना पाए थे अमार, 39, इमरान के 14, अफजल के 13, 3 विकेटें हासिल की फरहानुल्लाह ने, 2 तारिक और सलीम ने। जवाब में डेरा मुराद जमाली ने भी कुछ सिमिलर स्टार्ट दिया, 3 विकेटें अजब की और शाहिद ने 39, 38 कप्तान फहद की जानिब से भी। लेकिन सुदेश का अल्टीमेट ओवर, 3 विकेटें उन्होंने आखिरी ओवर में हासिल की, 5 रन डिफेंड किए और बहावलपुर को 4 रन से जीत दिलाई।